یہ حوالہ میں پڑھانا پسند کروں گا، یوحنا 10 باب کی 11ویں آیت دیکھیے گا، یہیں سے میں اپنی باتوں کو اجرا میں لاؤں گا۔ یوحنا 10 باب اور اس کی 11ویں آیت، معروف آیت ہے۔ جی موتی صاحب پڑھنا شروع کرتا ہوں اسی یسوع کے نام میں۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑیا ان کو پھاڑتا اور پرگندہ کرتا ہے۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ شکریہ جی، خدا کے پیارے لوگوں، انگریزی میں سے شیپرڈ کہا جاتا ہے، سے مراد ہے بھیڑوں کا چرانے والا۔ حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں خدا کا کلام باتیں کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ زمینی مثال سے آسمانی چیزوں کو جوڑا جاتا ہے تاکہ نسل آدم کو اس کی سمجھ آ سکے۔ گاڈ از اے گڈ شیپرڈ، سب سے اچھا چرواہا خدا ہے، یہی کہا جاتا ہے گاڈ از اے گڈ شیپرڈ۔ اور اس کے بعد نمبر آف سیکنڈ دیٹ ہی از دا سن، یسوع مسیح بھیڑوں کا اچھا چرواہا ہے، سیکنڈ تھنگ۔ اور تھرڈ ون پہ ہے میں اور آپ جنہیں بلاہٹ سے بلایا جاتا ہے اور چرواہے کی خدمات سے نوازا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ پہلے میں گاڈ از گڈ شیپرڈ، خدا چرواہا ہے، اور دوسرے نمبر پر یسوع مسیح چرواہا ہے۔ یہاں پر پڑھا گیا ہے یوحنا 10 باب کی 11ویں آیت، بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں۔ اور تھرڈ پہ جنہیں بلاہٹ سے بلایا جاتا ہے تاکہ وہ پاسمانی خدمت کو سر انجام دے، تھرڈ نمبر پہ یہ ہے خدا چرواہا، یسوع مسیح چرواہا، اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو چنا گیا کہ ہم بھیڑوں کی غلبانی کریں۔ مسیح خدا نے جب شاگردوں سے بات کی کہ میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں کیا بناؤں گا؟ آدم گیر بناؤں گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں تمہیں چرواہا بناؤں گا، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم کو میں چرواہا بناؤں گا، میں تمہیں پاسمانی خدمتوں سے نوازوں گا، بلیس کروں گا۔ آج مچھلیاں پکڑ رہے ہو، پھر تم آدمیت کا شکار کرو گے، آدمیوں کو پکڑو گے۔ سارے بولے ہاللیلویا۔ تو یاد رکھیے خدا اچھا چرواہا، یسوع مسیح اچھا چرواہا، اس کے بعد مجھے اور آپ کو بہترین چرواہا بننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے منسوب، خدا سے نکالے گئے، خدا سے ہماری بلاہٹ ہے، تو ہمیں خدا کو اور اس کے بیٹے کو فالو کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے غلبانی کرتے ہیں۔ خدا کیسے کرتا، یسوع مسیح کس طرح سے غلبانی کرتے، اور ہمیں کس طرح سے غلبانی کرنی ہے، ان باتوں پہ ہمیشہ ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔ کلام میں لکھا، خدا نے کہا میں اپنی بھیڑوں کے لیے فدیہ دیتا ہوں، یسوع مسیح نے کہا میں اپنی بھیڑوں کے لیے فدیہ دیتا ہوں، اور مجھے اور آپ کو بھی اسی انداز سے بات کرنا ہے کہ ہم بھی کلیسیا کے لیے فدیہ دینے والے ہیں۔ اور جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو دلہا دلہن کو کیا کہتے ہیں؟ دلہا کو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح یسوع مسیح نے جو اچھا چرواہا ہے کلیسیا کے لیے جان دی، اسی طرح دلہا بھی اپنی بیوی کے لیے جان دینے تک کیا رہے۔ سو یہ ایک رابطے کی زندگی ہے، جان دینے تک کی اور وفاداری کی بات ہے۔ سو خدا نے جنہیں یہ توفیق الہیہ میسر کروائی کہ انہیں چرواہے کی خدمت ملی، انہیں بھیڑیں چرانے کی خدمت ملی، انہیں مبشر کی خدمت ملی، کیٹیگری میں جس طرح سے بھی آپ کو خدمت ملی ہے، جان دینے تک اپنی خدمت کے ساتھ اپنی اعلیٰ وابستگی کا اظہار کرتے رہے۔ اور یہ چرواہے کی خدمت ہے، یہ پالنے کی خدمت ہے، دھوپ اور چھاؤں میں تمیز کروانے کی خدمت ہے جو خدا نے چرواہوں کو عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ چرواہے کی زندگی میں تبدیلی ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی، اور میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چرواہے جن کی زندگی میں خود سے تبدیلی نہ ہو وہ لائق چرواہے نہیں کہلاتے، اور ان کو بھیڑیں بھی فالو نہیں کرتی۔ جن چرواہوں کی زندگی میں، جن پاسبانوں کی زندگی میں بلاہٹ ہوتی ہے، تجربہ اسپرچولی ہوتا ہے، خدا سے ریسیو کرنے والے ہوتے ہیں، پھر دینے والے ہوتے ہیں،
याद रखिएगा लोग ब्लेस होते हैं। और कलाम खुदा में मसीह खुदावन से मंसूब एक बात है, मसीह खुदावन ने अपने चरवाहे की खिदमत को यूं बयान किया कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। तो शीप आर लिसनिंग, शीप जो है चरवाहे की आवाज को सुनती हैं। तो ऐसे चरवाहे जिनकी आवाज भेड़ें ना सुने और वो कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारी कलीसिया तो ठीक नहीं है जी, हम हमारी बात नहीं सुनते, हम हमारे से बदतमीजी करती है और हमें हदिया चंदा नहीं देती, इंतजामी मामलात में और इस अमूर में हमारे साथ तरजीही बुनियादों पे खड़ी नहीं होती, तो कसूर हमारा अपना ही है। किसी ने क्या कहा, मेरी भेड़े मेरी आवाज को, तो भेड़े तो आवाज सुनती है लेकिन चरवाहा यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। हालेलुया। सो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस चर्च में पासवानी खिदमत कर रहा हूँ और कई एक चर्चेस में एज ए शेफर्ड काम कर रहा हूँ। सो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। हालेलुया। उन्हें बोला जाए दाई की दे, हदिया दे, चंदा दे, ये काम करना, यहाँ करेगा, तो वो खड़ी होती है हमारे साथ और हमारी पीठ कभी भी नंगी नहीं होती, क्योंकि हमने सिखाया है, हमने जानकनी और जांफशानी से काम किया है। जब जानकनी और जांफशानी से आप काम करेंगे तो भेड़ें चरवाहे की आवाज को सुनेंगे। और वो चरवाहे जो भेड़ों में से गायब रहते हैं, सारा साल घूम रहते हैं और फिर ये कंप्लेन करें कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज नहीं सुनती, तो याद रखिएगा अपना एहतसाब करना हमें बहुत जरूरी है। हम ही अपने मुतसबे आला हों ताकि हमारी भेड़ें हमारी आवाज सुने। हालेलुया। खुदा के प्यारे लोगों, खुदा के साथ हम लोग सफर कर रहे हैं, कलाम के साथ सफर कर रहे हैं, खिदमत के साथ सफर कर रहे हैं। और ये सफर अगर दुआ से खाली हो, खिदमत से खाली हो और आसमानी दर्द से खाली हो, तो जान रखिएगा कि ये सफर महज एक सफर ही है। जवानी में शुरू किया था, बुढ़ापा उम्र आया, तो जब गवाहियों की बारी आती है तो खाली खुली नजर आते हैं, ना कुछ शागिर्दियत का अमल नजर आता है, ना ही बेहतरीन मुर्शिद कहलाते हैं और ना ही भेड़ें फिर आवाज सुनती हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमारा सफर हर दिन बाईस से बरकत हो दूसरों के लिए। चरवाहे खुदा के प्यारे लोगों बाईस से बरकत हो दूसरे के लिए, और भेड़ें ममियाती हुई ढूंढेंगी गलियों में, बाजारों में कि मेरा चरवाहा किधर है। यीशु मसीह जहां जहां जाते थे, घरों में, शाहराओं में और दरवाजों पे कतारें बन जाती थी, इधर यीशु तो नहीं आए, हमने उनसे दुआ करवानी है, हमने उनसे बात करनी है। सो इस स्टाइल को सुनो कि अपनाएं कि क्या लोग हमें ढूंढ रहे हैं, क्या हम ऐसे चरवाहे हैं जिस तरह मसीह को लोग ढूंढते थे, क्या मुझे लोग ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे? क्वेश्चन मार्क है। अगर ढूंढ रहे हैं तो शाबाश है, खुदा आपको बरकत दे और अपनी मिनिस्ट्रीज को तकवीयत दे। अगर नहीं लोग हमें ढूंढ रहे, हमारा फोन नहीं चल रहा, नहीं बज रहा दुआओं के लिए, कलाम के लिए, तो फिर इस पे सोचने की जरूरत है कि शायद मैं अच्छा चरवाहा नहीं बनने की जरूरत है, अपनी बुलाहट में गुजर बसर करने की जरूरत है। लूका रसूल की इंजील 22वें बाब की 32वीं आयत में ये निकाल के रखिए मोती साहब, इसको मैं पढ़वाता हूँ। खुदावंद के जो चरवाहे हैं, जो खुदावंद ने खड़े किए हैं, अब वो लोग जो चरवाहे नहीं हैं, कलीसिया अराकीन हैं और दुआ करने वाले अच्छे खुदा के लोग हैं, उनके लिए भी बड़ा जरूरी है कि हर वक्त चरवाहों पर ही उंगली न कसते रहें, हर वक्त चरवाहों पर ही अपनी जुबान न खोलते रहें, बल्कि उनके लिए दुआ भी करें। तनकीद करना बतौर नकाद अपने आप को पेश करना आसान है, मुकाबल इस बात के कि दुआ की जाए। कितने लोग हैं जो दुआ करते हैं चरवाहों के लिए कि खुदा तूने इन्हें गला दिया है तो खुदा इन्हें अकल भी दे, दानिशमंदी दे, इंटेलेक्चुअल पावर इनकी बढ़ा दे, खुदा के वसीले से निजात का काम बढ़ता चला जाए। हम घुटनों के बल होके चरवाहों के लिए क्या करें? दुआ करें। और याद रखिए, आप लिंक लाइन में आ जाते हैं, आप रूहानी मामलात में आ जाते हैं जब आप खुदा के चुनीतों के लिए दुआ करते हैं, तो खुदा का फरिश्ता आप पे भी हाथ रखता है, क्योंकि आप रूहानी मामलात में आ जाते हैं। और जब आप हसद की बुनियाद पर नाजायज खुदा के खातों पर तनकीद बर्पा कर देंगे, तो याद रखिए जो कोई खुदा के मंसूब पर बात करता है, खुदा उससे भी बात करना पसंद नहीं करता। हम खुदा के चुनाव पर, खुदा के बुलाहट पर, जिस किस्मत से उसने हमें बुलाया है बतौर
इनेकार हर वक्त इन्हीं मामलात में मसरूफ ना रहे, बल्कि घुटनों के बल होके दुआ करें। मैं जानता हूं मैं कमजोर हूं, आप जानते हैं आप भी कमजोर हैं। चरवाहे होने से कतई तौर पर यह मुराद नहीं है कि हम परफेक्ट हो गए हैं, हम एंजेलिकल फोर्सेस बन गए। हरगिज़ ऐसा नहीं है। हम बशर हैं और बतौर बशर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वही गलतियां खताएं जो आपसे होती हैं हमसे भी हो सकती हैं, लेकिन फर्क इतना है कि हम मसलाशुदा हैं, आप मसलाशुदा हैं, ठीक है। और जो मसलाशुदा है कोशिश करें कि वो साबित भी करें कि वी आर 100%। आमीन। 19 ਦਾ ਫਰਕ ਤੇ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ 19 ਦਾ भी फर्क नहीं पाना तो फिर कुछ भी। सो थोड़ा सा रूहानी हलकों में हमें गलबा रखने की जरूरत है। और चर्च जरूर से वहां के लिए दुआ करें। आप अपनी कलीसियाओं से जरूर कहें कि आप जब भी दुआ करें मेरा नाम शख्सी तौर पर लेकर के दुआ करें कि जो चरवाहे की खिदमत खुदावंद ने हमें दी है जान देने तक इसके साथ वफादार रहें। दुआ की अहमियत यह है। लूका 22:32 पढ़िए। लूका 22:32 है। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता न रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत कर। जी, यहाँ पर यीशु मसीह खुद से बयान कर रहे हैं कि पीटर मैंने तेरे लिए क्या किया है, दुआ की है ताकि तेरा फेथ डिक्लाइन ना हो, तनज़ली का शिकार ना हो जाए। तो क्या कहेंगे? बेहतरीन रवैया यह है कि जहां आप जिस खादम में कमजोरी देखते हैं दूसरों के बारे में उसके लिए दुआ करें। याद रखिएगा आप ऐसा करेंगे आप पर मसा दुगना चौगना होना शुरू हो जाएगा। आपकी जुबान अगर छुरियां और कांटे चलाएगी तो याद रखें पहला मसा भी पर लगा के उठ जाएगा। आप कभी खा भी नहीं आ रहा, कभी आवाज ही नहीं आई खुदावंद की तरफ से, कभी मुस्कुराहट से मसा ही मुझ पे डर। वजह क्या है? वजह यह है कि हम खुदा के ठहराए हुए लोगों पर बिला वजह तनकीद करते रहते हैं ताकि हम उनके लिए दुआ करें। यीशु मसीह ने पतरस से कहा मैंने तेरे लिए दुआ की, तेरा ईमान जाता है। तो यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं तो मुझे और आपको भी दुआ करने की जरूरत है। मरी में हम गए, वहां पर कॉन्फ्रेंस थी और खादम ने सुबह तकरीर शुरू करनी, और जब वो तकरीर कर रहा था तो उसने कहा जी हाथ खड़ा करके फलां खादम के लिए, मैं नाम नहीं लेता, फलां खादम के लिए दुआ करें खुदा उसे मौत दे दे, उसका बेड़ा गर्क हो जाए, उसने डालर खा लिया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। मीटिंग के इंतजाम पर झगड़ा शुरू हो गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। बीच में से उनकी शागिर्द थी, वो बोलना शुरू हो गया आप गलत कर रहे हैं। और जब खाने का वक्त आया तो मैंने कहा सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कहा जी कीजिए। और उस वक्त में मैंने उनसे कहा कि हम खादम हैं, हमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम एक दूसरे के लिए लानत करें, बल्कि ये क्या कहा कि एक दूसरे के लिए बरकत चाहो। उसने डॉलर खाया, उसने पाउंड खाया, उसने यूरो खाया, उसने पाकिस्तानी करेंसी खाया, उसका उसके खुदा का मामला है। आपने उसे क्या दिया ये बताओ। तो आप कभी भी आप उठाकर कभी ये नहीं कह सकते खुदा ने इस खादम ने दुनिया का चुकला है, इन्हें किताब दे दे, वो किताब वो उठाएगा जिससे उसने उठाना। आप ये दुआ अर्ज नहीं कर सकते और ना ही आपको करने की ये विस्तार होनी चाहिए। कलाम में लिखा है तुम बरकत के लिए बुलाए गए और एक दूसरे के लिए क्या चाहो। तो कभी उजरत में, गैर जिम्मेदारी में और इस तरह की गलती या गुनाह ना कीजिएगा कि खादमों के खिलाफ हाथ उठा के घुटनों के बल होकर आप दुआ करना शुरू कर दें। फिर भी आप ही को पकड़ा जाएगा। जिड़ा व्यक्ति गलत बेढंगी दुआ करेगा फरिश्ते ਉਹਦੇ सिराने खड़े हो जाएंगे तू करने है। इसलिए ये सुरसी दुआ कर रहा है पतरस के ईमान को कंट्रोल करने के लिए। मुझे भी आप और आपको भी एक दूसरे के ईमान के लिए दुआ करते रहना चाहिए। खुदा ये कमजोर हो गया, ईमान में लड़ रहा है, प्रभु कोई एक दिन का तो सफर है नहीं, रोज लड़ता है, रोज गिर जाता है, प्रभु तो इसको जोर अता फरमा। हालेलुया। और ये दुआ मसीह की है और वो आप पर भी याद रखेगा कि ये कमजोरों के लिए दुआ करना। अपने तोपों का रुख शैतान की तरफ करें ना कि खुदा के खादमों की तरफ। सीस मस्जिद इस किताब के अंदर एक छोटा सा टाइटल था, उसने कहा मैं खादमों के लिए दुआ करने के लिए जाता हूँ और तहखाने में जाके उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। सीस मस्जिद कहते हैं कि और जब उस तहखाने में जाके दुआ करता हूँ खादमों के लिए तो मुझ पर बहुत खुदा की हुजूरी जबरदस्त तरीके से आती है कि जब मैं खादमों के लिए दुआ करता हूँ और मैं अपने तहखाने में कहता हूँ ये मेरा हरारती प्लांट है, यानी ये मुझे कुव्वत देता है। अपने तहखाने में जाके खादमों के लिए दुआ करता हूँ तो ये मेरा हरारती प्लांट है जिससे मुझे कुव्वत मिलती चली जाती है। सारे बोले हालेलुया। बोलो खुदा यीशु के पाक नाम की जय। खुदा के प्यारे लोगों, खुदा जिसे बुलाता है अचानक से उसे चरवाहा नहीं बना देता।
जल्दी बात करते चलता हूँ। कुछ लोग जल्दी से रेवरेंट बन जाते हैं, इज्जत माप बन जाते हैं। इज्जत माप बनना, रेवरेंट बनना, चरवाहा बनना ये अच्छा है, लेकिन जो कुछ जल्दी से आता है सारा काम शैतान का होता है। खुदा इंसान को ट्रेन करता है। शागिर्द अगर जाकर रेवरेंट बने, इज्जत माप बने, तो कई साल उन्होंने इसी के साथ लगाए गुजारे, फिर जाके वो इज्जत माप और रेवरेंट बने और लोग उनके हाथ पांव धोते, उन्होंने बरकत का सबब होते थे। खुदा की प्यारे लोगों, जब खुदावंद आपको बुलाए, किसी भी खिदमत के लिए खुदावंद आपको बुला रहा है, तो एहतियात करके, इंतजाम करके, खुदा के लोगों से सीख करके आए, ताकि कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर कोई गड़बड़ ना हो। जो सीखे हुए होते हैं खुदावंद का हाथ उन पे होता है। पूरी दुनिया का निजाम जो खुदावंद का है वो डिसिप्लिनरी है, एक डिसिप्लिन में है। आप देख सकते हैं कायनात का निजाम डिसिप्लिन में है, और खुदा के लोगों को भी डिसिप्लिन में रह के काम करना है। और इस डिसिप्लिन में जब आप रह काम करते हैं तो जरूरी आप पे दुगना चौगुना हो जाती है। और जो कोई इन दायरों को तोड़ता है, जी मैं अकेले थे ना, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मेरा उस्ताद पाकरू है, पाकरू ने हमें और आपको उस्ताद बनाया, सीखें, ओवरटेक ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुदा करो आपसे कहेगा जा रनिया के पास, वो तेरे छिलके कराएगा। समझ आ रही है? तो कभी ओवरटेक ना करें, बल्कि सीखते सीखते फिर आगे आए, रेवरेंट भी बने, शेपर्ड भी बने, बिशप भी बने, पोप भी बने, खुदावंद आपको बरकत देगा। हालेलुया। बट लर्न मस्ट, सीखते हुए आए और एहतियात से सफर को कंप्लीट करें। बोलो खुदावंद यीशु के नाम की जय। इफिसियों 4:1 मैं पढ़ाना पसंद करूंगा जी, इसको देखिएगा। इफिसियों 4 और उसकी पहली है, इफिसियों 4 और उसकी पहली है। बस मैं जो खुदा में कहती हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक जी चाल चलो। जिस बुलावे से बुलाए गए हो उसी के मुताबिक क्या चलो, चाल चलो। कंक्लूजन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जिस बुलावे से बुलाए गए, जिस दिन खुदा ने आपको चुना, जो द्रांति खुदा ने आपके हाथ में दी कि फसल काट, जिस तरह की खिदमत आपको दी, जिस तरह की चटाई खुदा ने आपको दी, याद रखिएगा उसी के मुताबिक क्या करो, चाल चलो। आप गवांडी दा मुंह लाल होवे ते अपना चपेड़ा मार मार के लाल सारे नंबर फजल या बैनी हिंदी बन सकते, ठीक है, सारे पानी जवेद या अशनाज नहीं बन सकते। हर एक का तोड़ा अलग-अलग है। कॉपी ना करने की कोशिश करिएगा। फिल्म स्टार एक दूसरे को कॉपी करते हैं, खादम एक दूसरे को कॉपी ना करें। हर एक का मसला अलग-अलग है। याद रखिए, जब आप कॉपी करेंगे आप अपना असल नाम खो देंगे, आप अपना असल मसा खोएंगे। कभी कॉपी ना करें, डोंट कॉपी अदर्स। हाँ, ये जरूर है कि अगर उसके अंदर अच्छा नमूना है तो उसे जरूर ले, लेकिन मसा को कॉपी करने की कोशिश ना करें, नकल करने की कोशिश ना करें। अगर किसी की वसीला से लोग गिर रहे हैं, उसने हाथ रखा तो आप भी धक्के मार मार के गिराना शुरू कर दें। डोंट डू दिस। अगर नहीं ये बरकत है, आप वो हाथ उठाएं तो लोग नहीं गिर गए तो गिराने की जरूरत नहीं है। धक्के देके गिराएंगे तो आसमान की बारिश में अच्छा काम नहीं मिलेगा। हो सकता है फरिश्ता कहता तुम तो हाथ दे के देखता रहता, धक्के दे के देखता, तेरा पहले भी नंबर काटता आ गया। डोंट डू, इस तरह से ना करें। जो जिसके लिए चुने गए हैं उसी में आपकी शनाख्त है, जिसके लिए आप चुने गए हैं उसी में आपकी बरकत है, उसी के मतलब से आप मुझे और आपको पूछा जाएगा। कॉपी ना करें किसी को, किसी के मसा को भी कॉपी ना करें। आप अपने मसा को बढ़ाने की कोशिश करें जिसके लिए मैं और आप बुलाए गए, और वो मसा जो आप पर और मुझ पर असल में है, रियल मसा है, वही हमें दुनिया के सामने लेकर के आएगा। हालेलुया। एक इनफरादी हैसियत से, इज्तिमाई हैसियत में लेकर के आएगा और हम दूसरों के लिए भाई से बरकत ठहरेंगे। सो इस तरह से भी हमें सोचने की जरूरत है कि जिस बुलावे में बुलाए गए उसी के मुताबिक चाल को चलो। जिस तरह से हम बुलाए गए उसी से हम चलने की कोशिश करें। और आखिरी बात कह के मैं कलाम को बंद करता हूँ। जो रसूल के 15 बाब की 30 आयत में